First, we talk about we'll talk about this forward propagation, and then few technical concepts, and then we come to the practical part. So, forward propagation क्या है? Forward propagation involves feeding input data through a neural network to produce an output, and the data passes through hidden layers where each layer processes it using an activation function before passing it to the next layer. ठीक है, तो फॉरवर्ड प्रोपागेशन से हम क्या कर रहे हैं? जो भी आपका डेटा आ रहा है, इनपुट आ रहा है, ठीक है, इसको हम फीड कर रहे हैं। ठीक है, एक लेयर में आया, उसको दूसरे लेयर में पुश किया, लाइक दैट, राइट? एंड फॉर दैट it takes the help of an activation function, right? In this diagram you can see these are some network inputs. Here the forward propagation is taking place, right? And some activation is function is there, and then with the help of that, this values are now passed to the next layer. Accordingly it happens, right? So this forward flow ensures that data does not circulate back, preventing non-output state. तो ये ensure करता है कि data वापस नहीं आ जाए, right? Preventing non-output states. Clear? So this process occurs for each layer in the network until the input reaches the output layer. ये हर एक लेयर के लिए होता है, चाहे जितने भी हिडन लेयर क्यों ना हो. ओके, बात कब स्टार्ट होता है? वन इट reaches the output layer. Now walking of forward propagation. The walking of forward propagation can be explained like this. You can see here this diagram. Right. So a line can be represented by the equation y is equal to mx plus यहाँ पे जो हमने intercept लिया है b. Right. Here y is the y coordinate, m is the slope, x is x coordinate, and b is the y intercept, which is the point at which the line crosses the y axis. ये जो line y axis के साथ जहाँ क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, जहां पे कट आउट कर रहा है, कट कर रहा है, तो उस पार्टिकुलर जितना भी डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, राइट? Now if it is assumed that x is the input, y is the output, then to initialize the parameter it can be assumed that y is an x multiplication vector. Obviously x multiplication vector, you can see here y is equal to mx, right, plus whatever be, right? Now again let's discuss few things about backward propagation, then we'll come to the practical part. Backward propagation in DNN. So it refers to the practice of adjusting the weights of a neural network based on the error rate or loss collected in the previous epoch. ये मैं पहले भी बोला हूँ, आज बस हम लोग इसके ऊपर स्पेसिफिकली डिस्कस कर रहे हैं. तो बैकवर्ड प्रोपागेशन का मतलब होता है वेट को ऐसा एडजस्ट करो ताकि एरर कम हो. ओके, सो बेस्ड ऑन द एरर रेट और लॉस कलेक्टेड इन द प्रीवियस इपॉक. You can see here like input, hidden one, hidden two, and then finally output. So it is the essence of the neural net training and helps ensure lower error rates. वेट को हम अपडेट ही इसलिए करते हैं ताकि आपका जो लॉस है वो मिनिमम हो. Big propagation can indeed overtrain or overfit the model, just like any other training or fitting method. Overfitting के बारे में मैं पहले ही बोला हूँ, right? लॉस कैलकुलेशन इन बैकवर्ड प्रोपागेशन, हमने लॉस कैलकुलेशन देख लिया था पहले, अभी फिर बैकवर्ड प्रोपागेशन के लिए स्पेसिफिकली देख रहे हैं. सो द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द लॉस वेरीज डिपेंडिंग ऑन द लॉस फंक्शन वी यूज. The loss function is the distance of the model. Okay, the loss function is the distance the model is from correctly classifying the provided input. तो क्या बोल रहे हैं हम? लॉस फंक्शन
is the distance the model is from correctly classifying the provided input. जो input है उसको correctly identify कर पा रहे हैं, अगर नहीं कर पा रहे तो कितना डिस्टेंस है, ठीक है। वो डिस्टेंस से मतलब डिफर हो रहा है आउटपुट, उसको हम बोलते हैं लॉस फंक्शन। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मॉडल्स प्रेडिक्शन फॉर अ गिवन इनपुट एंड व्हाट द एक्चुअल प्रोवाइडेड इनपुट इज। आई होप इतने बार हमने रिपीट किया है, ये चीज आपके लिए बहुत अभी समझ में आने लगा होगा आप लोगों को, राइट। सो व्हाट आर द यूजेस ऑफ इट? द ग्रेडियंट uses means back propagation. Okay, back propagation का uses क्या क्या है? The gradient descent algorithm uses back propagation to find the gradient of the loss function, right? And to minimize the error, we need to gradient, आप लोगों ने देखा था ना, हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया था, मैंने आप लोगों को चेन रूल भी दिखाया था, that one, don't forget. So to minimize the error, we need to optimize the weights by examining how the error changes with respect to the weights. This requires finding the derivative of the error with respect to the weight. तो ये जो हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज करना है वेट को, राइट। ऑप्टिमाइज करना है तो मतलब हमें ये जानना जरूरी है कि हाउ द एरर चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू द वेट। एरर कैसे चेंज हो रहा है with respect to the weight, और वो हमें कौन देगा? डेरिवेटिव ऑफ द एरर with respect to the weight। और इसी चीज को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द एरर with respect to the weight? Now the loss is calculated for the output generated from the given input. Subsequently, back propagation is used to update the weights to minimize the लॉस फंक्शन। तो समझ में आ गया? तो हमने लॉस कैलकुलेट कर दिया, कहाँ से? फॉर द आउटपुट जनरेटेड फ्रॉम द गिवन इनपुट। देन हमने बैक प्रोपागेशन यूज किया वेट्स को अपडेट करने के लिए, ताकि जो लॉस फंक्शन है उसको हम मिनिमाइज कर पाए। ओके, इस डायग्राम में आप फिर से देखिए, ठीक है। ग्रेड बैक प्रोपागेशन का यूजेस हमने दिखाया है। ग्रेडियंट डिसेंट बिगिंस by looking at the activation outputs from the output nodes to readjust the weights. This is feed forward, right? These are the input layer, hidden layer, and then output layer, right? Now, when we come like this, okay, then this is known as back propagation, and main purpose is to ये जो weights होता है ना, जैसे कि suppose ये WI है, W1 है, W2 है, W3 है, ये weights को हम और वो अपडेट करते हैं। Okay, no problem. So if the output nodes predict a value higher than the true value, the gradient descent algorithm will lower the predicted value. तो अगर आपका जो मॉडल है जो वैल्यू प्रेडिक्ट करके दे रहा है वो ट्रू वैल्यू से हायर है, तो ग्रेडियंट डिसेंट क्या करेगा? आपको प्रेडिक्टेड वैल्यू से कम करके दे देंगे। दिस एडजस्टमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस द लॉस फॉर द इनपुट, राइट। समझ में आ रहा है? तो the algorithm travels backward through the network and adjusts the weight from right यहाँ से left तक। Now let's come to the regularization, थोड़ा सा डिस्कस करके हम प्रैक्टिकल में जाएंगे, ठीक है। So when a neural network contains more than one hidden layer, हम अभी पहले भी डिस्कस किया है, अगर एक से ज्यादा हिडन लेयर होता है तो हम इसको बोलते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क, राइट। ये इनपुट लेयर है और मल्टीपल हिडन लेयर्स एंड देन आउटपुट लेयर। नाउ जब वैसा होता है ना तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। कितना ट्रेनिंग होगा आप देख सकते हो, कितने एक लेयर में इतने सारे कॉम्प्लेक्सिटी आ जाता है, इतने सारे ट्रेनिंग, तो इससे एक प्रॉब्लम जनरेट होता है ट्रेनिंग के दौरान। इसको बोलते हैं हम ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। आप इसको ओवरफिटिंग का मतलब होता है कि जब मॉडल है ट्रेनिंग के लिए पूरा लर्न हो रहा है, बट उस ट्रेनिंग के दौरान कुछ नॉइजेस आउटलेयर्स के कारण वो उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स उसका भी फीचर्स को वो लर्न कर रहा है। मतलब ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं, बट उसमें एक चीज फोकस नहीं किया गया, इसमें एरर है, सॉरी मतलब नॉइजेस है, आउटलायर है। अगर नॉइजेस रहेगा तो देखिए उससे भी वो लर्न करेगा,
right? So early stopping rules provide guidance as how many iterations can be run before the model begins to overfit. ये डायग्राम से ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा है, ये हमने y एक्सिस में एरो रखा है और x एक्सिस में इपॉक्स रखा है, राइट? तो जो एरो कम हो रहा है ये पूरा कम हो रहा है, ठीक है? ये एक क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल स्टेज में आ गया। इसी में अर्ली स्टॉपिंग एल्गोरिथम प्रेडिक्ट करके देगा कि कहाँ रुकना है, वेयर टू स्टॉप। सो ट्रेनिंग एरर। सो इपॉक्स रिफर्स, इपॉक्स के बारे में तो पहले ही बोला हूँ, दिस रिफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स entire data set is passed to the forward and backward through a neural network routine, and the learned model may fit the training data including the outliers too. So what happened, it fails to generalize the test data। अब वो आउटलायर को भी सीख रहा है, आउटलायर से भी फीचर ले रहा है, तो क्या होगा, एक जेन्युइन डेटा जब आएगा उसको वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा करेक्टली, ठीक है, कम हो जाएगा चांसेस। सो रेगुलराइजेशन इज ए मेथड we apply in machine learning and deep learning to avoid overfitting and enhance a model's ability to generalize, ठीक है? And this technique introduces a penalty into the loss function during the training process। और ये रेगुलराइजेशन कैसे काम करते हैं, ये रेगुलराइजेशन एक पेनल्टी इंट्रोड्यूस करते हैं लॉस फंक्शन में during the training process। There are some commonly used regularization technique, L2 regularization and dropout regularization। Okay, बहुत फेमस है L2 regularization, तो इसको पढ़ना जरूरी है। L2 regularization, weight decay, इसको हम बोल रहे हैं weight decay, also known as L2 regularization, is a specific type of regularization that adds the squared magnitude of the weights to the cost function। ठीक है, ये टर्म में ध्यान देना, क्या हम ऐड कर रहे हैं, add squared magnitude of the weights to the cost function। Regularization penalizes the large weight in addition to the overall cost function। The weight decay value determines how dominant regularization is during gradient computation। A large weight decay coefficient implies a large penalty for large weight, and ये इक्वेशन देखो, C is equal to C naught plus, this is known as regularization term divided by twice n W square। तो ये जो C है, C, this is the regularization cost function। C naught ओरिजिनल था, अब इसके साथ हमने जोड़ दिया ये, राइट? सो दिस इज a स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेगुलेशन जो कि आपका वो इसका स्क्वाट मैग्नीट्यूड ऐड कर देते हैं कॉस्ट फंक्शन के साथ। ये तो स्क्वाट ही हो गया ना, बाकी जो भी ऐड करे, बट स्क्वाट ऑफ द कोएफिशिएंट हमारा कॉस्ट फंक्शन इज एडेड हियर। बस इतना तो एटलीस्ट याद रख लेना। नाउ देखो ये, so you can see here C is equal to C naught plus lambda divided by twice n W square। ये कर्व के बारे में हम देख रहे हैं, complex non-linearity is reduced to linear function after application of the L2 regulation, thus reducing the complexity due to hidden layers। ओके, तो क्या हो रहा है, आपका जो L2 रेगुलेशन अप्लाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्सिटी आता है हिडन लेयर्स का वो कम हो जाता है, राइट? हम पेनालाइज कर रहे हैं 10% को, ठीक है? सो दैट वे वी यूज L2 रेगुलराइजेशन ट्राइंग टू रिड्यूस द ओवरफिटिंग प्रॉब्लम। देन हमारे पास है ड्रॉप ऑफ रेगुलेशन, उसमें जाएंगे, उससे पहले हम कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं। जस्ट अ मिनट। So the first task is interactive forward propagation simulator, ठीक है? So we need to build our own neural network and see how the forward propagation works in action। तो इसमें हम मैन्युअली इम्प्लीमेंट करेंगे इनपुट वैल्यूज, वेट्स, बायसेस एंड एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो,
सो न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर हमने कंसिडर किया है ना, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर. इनपुट लेयर means estimate, hidden layer, and output layer. So three inputs will be there. Three. Just 1 minute. So three input will be there, right? This three hidden network neuron will be there, and this will be going to one output neuron. ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहेगा आपका. ओके, तो इसमें मैं पहले वो प्रोग्राम दिखा देता हूँ, कंटेंट की सब, तब उसके बाद लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करेंगे. So this is the program today. You need to do import numpy as nv, import matplotlib dot pyplot as plot. बोलने की जरूरत नहीं, हम क्यों यूज करते, राइट. सो इसमें इसके बाद हमने रिलू एक्टिवेशन फंक्शन खुद डिफाइन किया है. जो रिलू एक्टिवेशन फंक्शन है, वी ऑल नो दैट दिस इज लाइक मैक्सिमम ऑफ 0 एंड x. यही था इसका स्ट्रक्चर, राइट. दिस इज द स्ट्रक्चर, मैक्सिमम ऑफ 0 एंड x. तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, डिफाइंड रिलू x return and p dot maximum 0x. Need to input the value, say to t1. Then weights. First weight हमने लिया 0.5, 0.2, 0.1, 0.4, 0.3, 0.2, 0.6, 0.1, 0.3. Hidden layer biases हमने डिफाइन कर दिया. सारा hidden layer biases 0.1, 0.2, 0.1. Then hidden to output weights. ये जो लेयर था ना, हिडन लेयर से आउटपुट तक, उसका वेट्स भी हमने डिफाइन कर दिया 0.5, 0.4, 0.3. एंड आउटपुट का एक ही है, तो उसमें बायस लिया है 0.2. फॉरवर्ड प्रोपगेशन को हमने डिफाइन किया wx1 और wx प्लस p1. that1 is equal to np dot x comma w1 plus p1. clear? let me clear this. उसके बाद हमने क्या किया, A1 में असाइन द रिलूज Z1, राइट. क्योंकि हमें एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना पड़ता है, हमने एक्टिवेशन फंक्शन रिलू बना के रखा है, यहाँ पे बना के रखा है हमने, ठीक है. तो हमने रिलू ऑफ Z1 इसको असाइन किया A1. देन Z2 इज इक्वल टू np डॉट A1 W2, नया जो वेट है, प्लस V2. आउटपुट इज इक्वल टू Z2. तो प्रिंट किया इनपुट, print hidden layer weighted sum, then print hidden layer output, then final network output. So we run the program. Say input क्या था आपका, 231 था input. उसके लिए हमें hidden layer weighted sum मिला 2.9, 1.6, 1.2. hidden layer output 2.9, 1.6, 1.2. then final network output 2.6. ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, इनपुट के साथ. सो ये एक्चुअली हिडन लेयर का जो वेट आप देते थे वो हो गया, और फाइनल आउटपुट जो है 0.65 मिल जाएगा. ओके, दिस वन इज ओके, यू कैन डू. देन नेक्स्ट वन वी हैव import numpy as np, import matplotlib.pyplot. ये वाला तो समझ में आ गया था हमें, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है क्यों हमने numpy लिया है, ठीक है. रिलू को डिफाइन किया, रिलू इज ऑलवेज डिफाइन एज मैक्स ऑफ 0x. ओके, तो जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, इनपुट -5 and 3. तो -5 and 0, इसमें मैक्स को लेंगे तो आउटपुट 0 हो जाएगा. इनपुट 3 है तो मैक्स ऑफ 0, 3, दैट इज 3 हो जाएगा. दो डाटा क्रिएट किया, दिस रिप्रेजेंट 3 इनपुट फीचर्स, राइट, 2, 3, 1. दिस कुड बी लाइक यहाँ पे स्टडी आवर, अटेंडेंस, असाइनमेंट स्कोर हो सकता है. वेट डिफाइन किया, ठीक है, 0.5, 0.2, 0.1, 0.4, 0.3, 0.2, 0.6, 0.1.
0.3. This is the weighted matrix between the input layer and the hidden layer. And B bias B1 is equal to and B dot array 0.1, 0.2, 0.1. These are the biases of the hidden neurons. ठीक है, hidden neurons का आपका biases है. So output layer wise W2 is equal to NP array 0.5, 0.4, 0.3. This which connect the hidden neurons to the output neuron. B2 is 0.2. This is the output neuron bias. ठीक है. Then हमने hidden layer input का ये कंसीडर कर लिया. मैथमेटिकली हमें पता है Z1 is equal to W1 X1 प्लस B. सो ये वेटेड सम ऑफ इनपुट हो गया. एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई किया, आउटपुट कैलकुलेट किया, फाइनल प्रेडिक्शन किया. ठीक है. अब ये तो हो गया. उसके बाद अभी आपको क्या करना है, यू जस्ट नीड टू चेंज, ये करना है आपको, दिस np डॉट एरे 2t1 टू np डॉट एरे 1015. हमने क्या किया, जो पहले 231 था उसको बदल के आप लोग क्या करोगे 1015. इससे क्या मिलेगा, यू नीड टू ऑब्जर्व हिडन लेयर आउटपुट एंड फाइनल आउटपुट एंड लेट मी नो. ओके. नाउ इंटरेक्टिव वर्जन, इसमें स्लाइडर हमने यूज किया नेक्स्ट वाला. अब देखो, इंपोर्ट नंबर snp, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plot. यहाँ देखो, यहाँ पे इंटरेक्टिव फ्लोट स्लाइडर हमने यूज किया है. फ्रॉम ipy इंपोर्ट इंटरेक्ट कॉमा फ्लोट स्लाइडर. ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो फॉरवर्ड प्रोपगेशन हमने डिफाइन किया, डिफाइन फॉरवर्ड प्रोपगेशन x1 x2 x3 x इक्वल टू b डॉट एरे x1 x2 x3. और w1 हमने डिफाइन करके रखा है पहले 0.5 0.2 0.1 0.4 0.3 0.2 0.6 0.1 0.3. अब ये सिस आपने पहले डिफाइन करके, अब v1 भी फिर से 0.2 0.1 0.2 0.1. now w2 is equal to 0.5 0.4 0.3, v2 0.2, z1 एक सेम जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला np डॉट डॉट x कोमा w1 प्लस v1. a1 इज इक्वल टू np, रेलू फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, np डॉट मैक्सिमम 0 z1 आउटपुट इज इक्वल टू np डॉट a1 कोमा w2 प्लस v2. गुड वैल्यूज प्रिंट कर दो हिडन लेयर्स एंड देन फाइनल आउटपुट. तो ये जो प्लॉटिंग हमने इंटरेक्टिव बनाने के लिए, हिडन न्यूरॉन 1, हिडन न्यूरॉन 2, हिडन न्यूरॉन 3, A1, hidden layer activation value you need to show. Then interact with the user. मिनिमम 0 से लेके 10 तक आप चेंज कर सकते हो. Similarly for 10, x2 and x3. Okay, so if we run this program, you will see the output. You can take a screenshot, this part you take the screenshot यहाँ तक के, and then next आपका यहाँ तक के screenshot and then this. Okay, so you can see x1 x2 x3. now you can change the value. यहाँ पे देखिए आप, you can drag and change. इसको चेंज करने से पहले क्या था, पहले सपोज ये था, तो कुछ ऐसा था, हिडन न्यूरॉन 1, हिडन न्यूरॉन 2, हिडन न्यूरॉन 3. अब हमने चेंज किया तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, हिडन, इसको चेंज किया तो व्हाट ऑब्जर्वेशन यू कुड सी, दैट यू नीड टू टेल मी. तो केयरफुली गोइंग थ्रू इट. ठीक है. तो आज के इंटर्नशिप क्लास में हमने फॉरवर्ड प्रोपागेशन, बैकवर्ड प्रोपागेशन पढ़ा. और फॉरवर्ड प्रोपागेशन और बैकवर्ड प्रोपागेशन ये जब कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो नॉर्मली ओवरफिटिंग प्रॉब्लम आते हैं. उसके साथ डील करने के लिए हमने L2 रेगुलराइजेशन देखा. वेट को वेनिश करने के लिए वो स्क्वायर वैल्यू यूज करते हैं. ठीक है. तो दैट वाज अबाउट द टेक्निकल पार्ट. और प्रैक्टिकल पार्ट में हमने फॉरवर्ड प्रोपागेशन को मैनुअली हम देख रहे हैं कैसे चेंज करके एक्टिवेशन रिलो एक्टिवेशन फंक्शन लिया. ठीक है. बायस चेंज किया तो बायस वैल्यूज एंड देन जो नॉर्मल हमारा वेटेड चार्म होता है WX प्लस बी. ठीक है. अकॉर्डिंगली वी शोड आउटपुट एंड देन
आई आस्क यू क्वेश्चन, अगर हम वैल्यू सेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, देन हमने इंटरेक्टिव स्लाइड बार के थ्रू हम वैल्यू को चेंज करके ऐसा आपको देख रहे हैं। आप ये दोनों प्रैक्टिकल करिए और लेट मी नो अबाउट द means changes or what observation you have made. Thank you.